So dear students, in this video I will discuss some more properties of definite integrals. See property P3 as given in NCERT. Property is like this: a to b fx dx is equal to f of a to b f of a plus b minus x dx. So what happens here? Replace x by sum of these limits minus x. So let us prove this property also. Start with right hand side. So right hand side is a to b f of a plus b minus x dx. Now you want to show that this is equal to this. For that we make substitution: a plus b minus x equal to t. Making this substitution so that we can show that this integral is equal to this integral. RHS equal to LHS. So differentiating we will get dx equal to minus dt. Now change the limit. When x is a, what is t? A plus b minus a, that is b. When x is b, for upper limit, t is equal to a plus b minus b, that is a. So now this integral will, the new lower limit will be b, new upper limit will be a, f of a plus b minus x is t, dx is minus dt. So this we get after these steps. And now here you will use one property which we have already studied in the previous video, that when we interchange the limits, what happens? This minus sign comes. So you will have minus 1 already here, minus 1 multiplied, and this when you interchange limit will become a to b ft dt. Minus 1 square will be plus, so this is a to b ft dt, using the property that when you interchange the limit, a minus sign comes. And at last you can show this is equal to a to b fx dx, again using a property, the first property which you started with, P0, where we only replace the variable. So wherever it was t, now it is x. And now you can see that this is same as what was given on left hand side. This is equal to LHS. In this way, this property we can prove. तो देखिए इस प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. प्रूव करने के लिए यहाँ दिया हुआ a to b fx dx इक्वल टू a to b f of a plus b minus x dx. तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते समय क्या करना होता है कि x की जगह आपको a plus b minus x लिख देना होता है. लिमिट वही रहती है जो पहले की थी, मतलब सम ऑफ लिमिट्स माइनस x. अब यहाँ पर इसको हम दिखा रहे हैं कैसे ये इंटीग्रल जो बना वो पहले वाले के इक्वल कैसे है. इसके लिए छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है कि a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट कर दिया, इससे dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा. और लिमिट चेंज करेंगे, पहले लोअर लिमिट के लिए रखेंगे. जब x a है तो t क्या होगा? a प्लस बी माइनस a d आ जाएगा. और जब x b होगा अपर लिमिट के लिए तो t क्या होगा? a प्लस बी माइनस b, यहाँ पर b कैंसिल होगा, a आ जाएगा. इस तरह से अब नई लिमिट आपकी बन गई b से a की. तो ये तो फंक्शन था आपका, t के फॉर्म में जब आप आए तो b से a हो गया, dx की जगह माइनस dt हो गया, ft dt, a प्लस बी माइनस एक्स को t रखा गया. ये पूरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मिला आपको. अब क्या किया गया, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगाना है जो लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि जब आप लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है. तो इस तरह से यहाँ लिमिटेड अभी b टू a है, अब इसको a से b किया गया तो एक और माइनस मल्टीप्लाई होगा. माइनस एक पहले से था यहाँ पे, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. तो बचा क्या? a टू b ft dt बन गया. अभी भी इसके इक्वल नहीं आया है, इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बताया गया था. उसमें चेंज ऑफ वेरिएबल P0 जिसको कहा गया, तो क्या होता है उसमें सिर्फ t की जगह आपको x कर देना है. a टू b fx dx, यही आपका इंटीग्रल था जो लेफ्ट हैंड साइड में. तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को इजीली आप इसमें प्रूव कर सकते हैं. वो छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है और
प्रीवियस प्रॉपर्टीज का यूज भी है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है, लिमिट चेंज होनी है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज हुई, लिमिट अप्लाई हुआ, लिमिट को जब इंटरचेंज किया तो एक माइनस आया, इससे प्लस होगा, फिर एक यहाँ दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई हुई जो चेंज ऑफ वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी। सो सी द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन 1 to 3 square root of 4 minus x upon square root of x plus square root of 4 minus x dx. This is the integral and this is to be obtained. So here if you want to integrate this without using the property, then it will be difficult for you to do this. So but if you use this property, then it will be easy. Let this be I, and then using the same property replace x by a plus b minus x. So x will become 1 plus 3 minus x, that is 4 minus x. So everywhere where x is present you will write 4 minus x. Limit will remain same 1 to 3 because everything same, so only the x will replace by a plus b minus x. So this will be square root of 4 minus x replaced by 4 minus x. So in place of x write 4 minus x upon root of x, that is root of x is 4 minus x plus root of 4 minus, again replace x by 4 minus x. Use a bracket here. So now you can simplify this. What will happen? 1 to 3. Here you can see that 4 will cancel and it will become x, root x. So here 4 minus x under root of 4 minus x, no change. Here again same situation, 4 will cancel and x will become positive plus root x dx. So this is again I by using the property. So this was one equation, the given equation, and this is the second equation you got. So let me summarize this. यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को एप्लीकेशन के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को 1 to 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर आप कोई मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे रेशनलाइज करेंगे, तो काफ़ी लेंथी मेथड लग सकता है यहाँ पे। तो इस जगह ऐसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे आप। क्या करना होगा? प्रॉपर्टी में सिंपली x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर देना है, लिमिट वही रहेगी, लिमिट में कोई चेंज नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का जो अप्लाई किया तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह 3 है, तो ये 4 माइनस एक्स हो गया। तो हर पूरे इंटीग्रल में आपको जहाँ जहाँ x है, ds के लिए तो कुछ नहीं करना है, ds वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4 माइनस एक्स लिखना है। तो 4 माइनस एक्स का अंडर रूट हो गया, या रूट ऑफ 4 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स का अंडर रूट हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 कैंसिल होगा, x प्लस में आ जाएगा, यहाँ भी सेम वही होगा। तो इस तरह से बचेगा आपके पास रूट एक्स अपॉन रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, मतलब उसी इंटीग्रल की दूसरी वैल्यू यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग above प्रॉपर्टी P3, P3 के फॉर्म में आपके बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा। इसको अप्लाई करने के बाद तो क्या अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गए 1 and 2। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ये भी i की वैल्यू है, ये भी i की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देना। यू विल गेट 2i इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों इसको दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस रूट 4 माइनस एक्स, तो सीधे आप ऐड कर सकते हैं रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। यहाँ पर रूट 4 माइनस एक्स है और यहाँ पर रूट एक्स है dx। इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों सेम हो गया। तो इस तरह से 1 to 3 का लिमिट वही रहेगा आपका। तो ये क्या आ गया? फाइनली आ गया 1 to 3 dx, and this you can write as integrate x, easily integrated, dx का इंटीग्रेशन x, so 1 to 3, so it is apply the limit 3 minus 1, that is 2. So therefore this is 2i equal to 2, implies I is equal to 1. This is the
फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जहाँ पर ऐसे देखें इस तरह से प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ए प्लस एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है। और एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप P4, दिस प्रॉपर्टी इज 0 to a fx dx equal to 0 to a f of a minus x dx. So this property is not a new property, it is just a particular case of previous property. So P4 is a particular case of P3. Because in that case it was A and B, so in place of A, when A is 0 and B is A, so when you put A is 0, lower limit 0, and then it is A plus B minus x, same property you can apply here. But here separately also you can prove this property. तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है आपकी जो 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, ये P4 के फॉर्म में दिया है एनसीईआरटी में आपके। तो इसको अगर आपको इसको आप P3 प्रॉपर्टी जो है उसी का एक पर्टिकुलर केस ले सकते हैं जब a को 0 ले लिया जाए और b को a कर दिया जाए। यहाँ पर a प्लस b था, तो इस तरह से आपका लोअर लिमिट वहाँ पर a थी तो उसकी जगह 0 ले लिया जाए, अपर लिमिट b था उसको a ले लिया गया, तो ये सेम केस बन जाएगा। अलग से इसको प्रूव भी आप कर सकते हैं कि कैसे RHS को कैसे दिखाएंगे, सेम टाइप का मेथड अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग विद 0 to a f of a minus x dx, make this substitution a minus x equal to t, you will get dx equal to minus dt, put x equal to 0, what will be a, what will be t, because we are changing the variable at lower limit, what will be t, when x is 0 t is a, when x is a what is t, when x is a it is a minus a, that is 0. So now take these changes, so this will become new limits are from a to 0, in case of dx write minus dt f of t. So therefore you will again apply the properties, previous properties, interchange of limit will bring minus sign, so it will become minus 1 square 0 to a ft dt, and again you can change by the variable will give you 0 to a fx dx, that is LHS. In this way you can separately prove this property also, so using the similar logic. तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए उसी तरीके का मेथड अप्लाई किया गया जहां पर पहला वाला प्रॉपर्टी था a प्लस बी माइनस एक्स वाला, वहां पे भी a प्लस बी माइनस एक्स को टी पुट किया, तो यहाँ पे a माइनस एक्स को टी पुट किया, dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। फिर लिमिट चेंज करेंगे, जब x को 0 रखेंगे तो t कितना आएगा, a आएगा, x को a रखेंगे तो t 0 आ जाएगा। तो न्यू लिमिट आपकी a टू 0 हो गई, dx की जगह माइनस dt ft dt। उसके बाद आप वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी अप्लाई करेंगे, पहले इंटरचेंज ऑफ लिमिट करेंगे, क्योंकि इस तरह के इंटीग्रल आपको बनाना है 0 to a वाला, तो a टू 0 को 0 to a कर देंगे, इससे एक माइनस r आ जाएगा। तो इस तरह से ये, और उसके बाद नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जहाँ चेंज ऑफ वेरिएबल होता है कि वेरिएबल t को x कर देंगे। इस तरह से आप ये आपके LHS के बराबर आ गया। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे आप, आगे देखेंगे। लेट अस सी वन एप्लीकेशन हियर। So one application of this property we can take question number 2 of exercise 7.11. Question is like this: 0 to pi by 2 square root of sin x upon square root of sin x plus square root of cos x dx. So this integral is difficult to integrate if you don't use the property. Without using the property, it will be very difficult to integrate. But if you use this property, then I will become 0 to pi by 2, because this property is applied when lower limit is 0, upper limit is non-zero quantity. So this replace x by pi by 2 minus x. So root of
sin pi by 2 minus x upon root of sin pi by 2 minus x plus root of cos pi by 2 minus x. Here using the property 0 to a fx dx equal to 0 to a f of a minus x dx. This property is being used here, replacing. So suppose this is equation number 1, and then after applying this property, and now use the formula of trigonometry. So use the trigonometric formula, then you will clearly see, write that sin pi by 2 minus x is cos x, same here cos pi by 2 minus x is sin x. So this I will become, or I is equal to square root of cos x upon root of cos x plus root of sin x dx. No change in the limit, 0 to pi by 2. Suppose equation number 2. Now see equation number 1, equation number 2. Here denominator is same, limits are same, we can add them. So adding 1 and 2, adding 1 and 2, what you get? 2i is equal to 0 to pi by 2 root of sin x plus root of cos x upon root of sin x plus root of cos x dx. So both numerator and denominator are same, they will cancel, and you get 0 to pi by 2 integral 1 dx you can write. So let me summarize this up to this step. तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका ये है 0 to pi by 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स. अगर आप इसको बिना इंटीग्रेशन, बिना प्रॉपर्टी के अप्लाई इंडिकेट करना चाहेंगे तो इसको इंडिकेट करना बहुत, अभी तक आपके पास कोई मेथड नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी काफ़ी आएगी. लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे तो एक्स की जगह हर जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, तो इससे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप इसको देखिए 1 को और ये 2 को, ये दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करिए, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और लिमिट भी सेम है, क्योंकि लिमिट में तो कुछ नहीं किया गया यहाँ पर, सिंपली ये प्रॉपर्टी कोई सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं है यहाँ पे. इस तरह से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर. तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बच गया यहाँ पर. और अब आगे चलेंगे इस पे, तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं कि 2i is equal to 1 integrated as x 0 to pi by 2. So it is pi by 2 minus 0, applying the limits. So therefore you get 2i is equal to pi by 4 pi by 2 or I is equal to pi by 4. This is the answer. The same method you can follow for question number 3 also. Similar method applicable for question number 3, question number 4 of exercise 7.11, your NCERT book. So you can try these two questions also in the same way. तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप सेम मेथड से फॉलो कर सकते हैं. तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, मेनली वो एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन उसको दो पर्टिकुलर केस में डिवाइड हो गया है. तो इस तरह से आप कैसे उसको प्रूव करना है वो भी डिस्कस किया गया, और कैसे उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, दोनों के साथ एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया. अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉपर्टी को किस सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करना है. So that's all in this video.